guys, once again welcome back to my channel Learning Passion and you are learning with Krishna Singhania. So guys, we have finally completed 4 chapters of our pre-midterm and our only last chapter remaining. जिन्हें सिर्फ वही 4 चैप्टर आ रहे हैं प्री मिड टर्म में उन्हें तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज अब उन्हें नए वीडियोस अभी नहीं देखने पड़ेंगे पर जिन्हें ये 5th चैप्टर जो है आज का हमारा विच आई सेड टू यू आई विल कीप सरप्राइज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रशियन रिवॉल्यूशन गाइस अगेन हिस्ट्री चैप्टर एंड विद अ न्यू स्टोरी. तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलता जुलता ही है. बेसिक आइडिया कहूँ तो मैं सेम ही है, बस थोड़े से टर्म्स न्यू है एंड इवन द स्टोरी इज लिटिल न्यू. So guys, so let's start. We have already discussed much, so we can start with our chapter. Guys, इसका जो यूनिट 1 है इसमें कोई स्टोरी जैसा पार्ट अभी है नहीं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. कि जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंट्रोडक्शन देखा था ना कि 3 states क्या थे एंड ऑल इट्स पावर्स एंड something like that. So this also unit 1 is something like that only. Okay. So guys, let's start the chapter. बहुत ही अच्छा चैप्टर पर ओके गाइस, so you can really learn a lot from this chapter. So first unit is the age of social change. इसका बेसिक मीनिंग क्या पता चलता है आपको? ये जो हेडलाइन है द एज ऑफ सोशल चेंज, इसका आपको बेसिक मीनिंग क्या समझता हो? द एज व्हेन चेंजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं एक तरीके से, जब चेंजेस आना धीरे धीरे शुरू होने लग गए. ओके. So guys, we are going to do this chapter by reading because मैं जब पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ भी जाता है पहले. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe and after French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. है ना? हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि जैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर थी उस हमारे रिवॉल्यूशन से सोसाइटी को चेंज करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने एक तरीके से. वाई? बिकॉज वी वर सप्रेस्ड कंटिन्यूसली. समझ लीजिए ये थर्ड स्टेट था और ये एरिस्टोक्रेसी या फिर फर्स्ट स्टेट यानी ऑफ क्लर्जी. तो ये बार बार इसे दबा रहे थे ना, तो ये कब तक चुप बैठता हाथ, फिर एक रख के हाथ को देना ही था चाटा. दैट इज द चेंजेस बिकॉज if you suppress anyone more than a limit, then they ask for a change. They will not tolerate it for long. And that only we learn from French Revolution that after much suppression, there should be a dramatic change in the society, how it was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. मीन्स जो टॉप के लोग थे, जैसे इसमें बताया गया एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च इन द सेंस या मीन्स क्लर्जी पीपल, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा. सो दे ओनली मोस्टली कंट्रोल द सोसाइटी एज दे वर हैविंग द पावर. Suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. But जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम रिवॉल्यूशन लाते, we try to change the society. उससे क्या होता है? क्या होता है? We bring the change in the power. है ना? पहले पावर सब चर्च के हाथ में थी, but when the revolution occurs continuously one after the other and new changes also come into existence, then what happens? The power goes down and then people rules come into existence. Okay, in many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual right, हमारे खुद के अधिकार, जैसे freedom of speech, freedom of information, freedom of vote ऐसे, and who control social power began to be discussed. कि अब किसके पास all over the nation की power होनी चाहिए? That. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution. Means they learned a lot from a French Revolution. The changes which were continuously occurring in France, है ना, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए फ्रांस में धीरे धीरे. यूनिट सिस्टम्स चेंज हो गए, एक ऑल ओवर सिंपल एक क्या बोलेंगे हम स्टेट मेजरमेंट सिस्टम्स आ गई. So there were various changes being occurring continuously in France, and from that all over the world people were inspiring that we talked in previous chapter only. And many other debated the ideas of post revolution यूरोप. और फिर रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया.
The development in colonies in turn reshaped these ideas of societal change. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Means यूरोप में सब लोगों को चेंजेस नहीं चाहिए थे या फिर सबकी वांट ऑफ चेंजेस कि चेंजेस किस लेवल पे होने चाहिए या फिर चेंजेस किस प्रकार होने चाहिए वो सबके आइडियोलॉजीज अलग अलग थी. Responses varied from those who accepted that changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some of were conservatives, others were liberals or radicals. ठीक है, कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स क्या होते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम उसमें अच्छे से समझेंगे. बस यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ये बताया गया कि एकदम से चेंज हो जाना मीन्स रिस्पॉन्सेस कैसे थे कि सोसाइटी एकदम से पूरी चेंज हो जाए या फिर धीरे धीरे 100 साल में धीरे धीरे चेंजेस ला के चेंज हो. इस टाइप का था डिफरेंशिएशन था. What did this term really mean in the context of the term? What separated these strands of politics and what linked them together? इनमें क्या डिफरेंस थे या फिर इनमें क्या सिमिलर था. सिमिलर तो क्या हो सकते हैं, आइडियोलॉजी हो सकती है या फिर पीपल हो सकता है. बात कुछ सिंपल सिमिलर नहीं हो सकता. डिफरेंस ये हो सकता है कि बेसिक थिंकिंग कि ये आइडिया ऐसे इम्प्लीमेंट हो या फिर समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स में डिफरेंस हो लाइक दैट. We must remember that these terms do not mean the same thing in all the contexts or at all the times. मतलब ये terms जिधर भी आएगी कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स हमेशा इनका मतलब एक जैसा ही नहीं रहेगा हर जगह. अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट में जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस हिसाब से इनका मतलब थोड़ा सा चेंज करेगा. ओके, we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century in this chapter and see how they influence the change और उससे फिर changes कैसे आए. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at radical transformation of society. और एक ऐसा event भी हम discuss करेंगे जिसमें people try to suddenly change the society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape the society in the 20th century. Socialism मतलब when we come together है ना, कोई एक अकेला बंदा तो मिलके सोसाइटी चेंज नहीं कर रहा. वी नीड अ कम्युनिटी, अ यूनिटी है ना. यूनिटी डाइवर्सिटी आपने सुना होगा ये. So when unity comes, that time we become a powerful method to suppress any of the society, any wrong problem in the going in the society or something. So for that you need to come together, and that was most important for the revolution. Now, who were liberals, radicals, and conservative? एक ग्रुप था लिबरल का जिनका ये मानना था दैट वी वांट अ नेशन विच एक्सेप्टेड ऑल द रिलीजन्स है ना. हम जब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको लिबरल का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा. बट इधर आप समझ सकते हो व्हाट डज लिबरल मीन्स. उनका क्या बोलना था वो ग्रुप का लिबरल वालों का कि वी वांट अ नेशन विच एक्सेप्टेड ऑल द रिलीजन्स. ओके, और कभी भी रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. मीन्स तू ऊंची जात का है, तू नीची जात का है, उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों में. एवरी रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ठीक है. फिर उनका ये बोलना था कि हमेशा डायनेस्टिक रूलर्स ही पावर कंट्रोल करेंगे. What rebels also oppose the uncontrolled power of the dynastic ruler. Dynastic rulers मतलब राजाओं के. Uncontrolled मतलब unlimited powers. जब चाहे जो मन कहे वो चेंजेस ला देना या फिर वो एक्ट्स ला देना, ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be the way of bringing acts or if any policy, and there should be some limitation. कि अगर कुछ चीज ला रहे हो तो उससे सिर्फ ये लिमिट के अंदर लाओ वो चेंजेस. एकदम ही हमें कैसे हम सप्रेस ना हो जाए ऐसे चेंजेस मत लाओ, ऐसा उनका बोलना था. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. वो पॉइंट आपको समझ गया होगा. दे आर्ग्यू फॉर रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉस इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिसर्स. एक तरीके से बोलो तो इंडियन जैसी गवर्नमेंट चाहिए थी. मीन्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे इधर जैसे इलेक्शंस होते हैं, हमारे फिर लीडर सिलेक्ट होते हैं, तो वैसे ही उनको इलेक्शन सिस्टम चाहिए थी. देन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लोकसभा की जैसे हम इलेक्ट करते हैं, so like that they wanted elected parliamentary government.
सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन जुडिशरी, जिसमें कुछ लॉज हो, कानून हो, जिस पे कौन ध्यान रखे कंटिन्यूसली, जुडिशरी। ओके, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल, मीन्स जिसके ऊपर कोई भी राजा या फिर कोई भी बड़े अधिकारियों का दबाव ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो खुद के डिसीजंस देने के लिए। दैट वाज द थॉट ऑफ लिबरल। दे वर बट नॉट डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स मतलब दे जो डेमोक्रेसी के हर एक आइडिया को स्प्रेड करते हो। एंड इन लास्ट चैप्टर वी सॉ वन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक, दैट इज कि डेमोक्रेसी अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, कि आप जैसे ही 18 साल के हो जाते हो आपको राइट टू वोट मिल जाता है, एवरीवन इन द कंट्री, नॉट रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और समथिंग। तो they were opposed to that. They don't want to give right to vote to everyone, not even women. सिर्फ जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जैसे जिनके पास लैंड है, बिल्डिंग है खुद की, प्रॉपर्टी होल्डर, सिर्फ उन्हें ही राइट टू वोट मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। ओके, so this was all about the liberals. मैंने जो points highlight किए वो आप उसे लिख सकते हैं, because those are the points if you are asked about write a short brief content on liberals, तो आप उतना point लिख सकते हैं। Now radicals, they want a nation in which government was based on majority of country's population. उन्हें कैसी चाहिए थी लिबरल को? इलेक्टेड फॉर्म की। इन्हें कैसी चाहिए कि जो मेजोरिटी अवेलेबल रहेगी कंट्री में उसने रूल करना चाहिए कंट्री को। इफ आई से इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इफ महाराष्ट्रियंस आर दी मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में महाराष्ट्रियंस लोग हैं, तो महाराष्ट्रियन लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो वैसे उनका था, उनकी जो भी वहाँ पे मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द जो भी पॉपुलेशन होगी उसने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। Many supported women suffrage movement. Suffrage movement's right to vote. Women को भी right to vote मिलना चाहिए, वो वाला movement. Unlike liberals, they oppose the privileges of the great land owners and wealthy factory owners, है ना, उन्हें privileges जो मिलते थे बड़े। अब factory owners और land owners कौन होते हैं? Mostly church वाले, clergy, then nobility, है ना। तो उन्हें जो बाय बर्थ राइट्स मिलते हैं, या फिर जो राजा उनके लिए टाइम टू टाइम न्यू न्यू पॉलिसीज लाते जाता है, वो उनके हक में ना हो, वो सबके लिए ऐसा उनका बोलना था, या फिर कुछ। Okay, they were not against the existence of private property but dislikes the concentration of property in the hands of few. वो किसी ऐसा नहीं था कि भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है तुम क्या, उन्हें उससे कोई झगड़ा नहीं था। हाँ भाई तुम प्रॉपर्टी रखो ना, क्यों, गलत बात नहीं है प्रॉपर्टी रखना, बट प्रॉपर्टी वॉज नॉट इक्वली डिवाइडेड। सिर्फ समझ लो, अगर दो कास्ट या फिर हम कहें दो लोग हैं, तो सिर्फ इसके पास प्रॉपर्टी, इसके पास कोई प्रॉपर्टी ना है, means all the property was concentrated in the hands of few and few did not have anything like that. So this was all about radicals. Now third was the conservative. Now conservative were against the liberals and radicals. Okay, पहले तो ये कंजर्वेटिव चाहते थे कि चेंजेस आए सोसाइटी में, बट नॉट ग्रेजुअली। जितना फास्ट लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते उतना फास्ट तो ना है, थ्रू स्लो चेंजेस या फिर थ्रू टाइम लैप्स में धीरे धीरे करके। इफ आई से, मैं आपको पहले बताने कि 100 साल में धीरे 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 करके एक एक चेंजेस लाया जाए, नॉट कंटिन्यूसली और नॉट ग्रेजुअली ऑल चेंजेस शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, बट कंजर्वेटिव पहले तो चाहते ही नहीं थे कि कोई चेंजेस आए। दे वांटेड दैट जैसा ट्रेडिशन चलते आ रहा है वैसा चलने दो, हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए सोसाइटी में। बट when radicals and liberals were opposing at high level, तब कंजर्वेटिव सोचे अब हम भी ना बोलेंगे तो लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, दे विल लेफ्ट अस, दे विल लीव आवर ग्रुप्स। कंजर्वेटिव में मोस्टली रहती कौन है? क्लर्जी, नोबिलिटी और राजा रानी, ये सब वाले इनके चमचे चुमचे कंजर्वेटिव में रहते थे। तो या फिर कोई कॉमन पीपल भी रहते हो गए, आई डोंट नो, बट मोस्टली इनका ही रहता था। सो दे एक्सेप्टेड ना, चेंजेस आने चाहिए बट धीरे धीरे, because they wanted that some traditions need to be followed. एकदम से हम traditions को भुला दे वो गलत होगा। We are irrespecting our past. हम उसका अपमान कर रहे हैं, ऐसा उनका बोलना था। So this was some of the ideology of conservative. But such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. But ऐसे सोच विचार में डिफरेंस होने से क्या होता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies.
है ना, बेसिकली कि जब एक मैं अभी तक का हमारा देखो तो हमने देखा कि तीनों में बहुत आइडियाज सिमिलर भी थे तो बहुत आइडियाज डिफरेंट भी थे। दोनों का वे ऑफ इनएक्टिंग वाज डिफरेंट, इम्प्लीमेंटिंग लेवल तीनों के अलग अलग थे। दोनों तीनों के आई थिंक सो कुछ कुछ आइडियाज मिलते थे, पर वो आइडियाज थोड़े अजीब तरीके से मिलते थे, इन द सेंस में कि सबको गवर्नमेंट चेंज चाहिए, बट अपने अपने टाइप की गवर्नमेंट चाहिए अब सबको। सो वी कैन सी हियर दैट एवरीवन्स चॉइस वाज डिफरेंट लिटिल, and that's why when all come together with their own ideas, so it leads to clashes, and then with the help of a group of people at the higher level, या फिर हम कहें जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि रूसो थे या फिर मॉन्टेस्क्यू थे, when they all guide the people, that time it leads to revolution, and then changes come into existence. Industrial society and social change. These political trends were the sign of new time, है ना, कि अब जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं, रैडिकल्स के, लिबरल्स के, कंजर्वेटिव्स के, तो इससे क्या होगा, अब न्यू टाइम आएगा, मीन्स अब न्यू जनरेशन आएगी एक तरीके से, अब न्यू आइडियाज के साथ लोग आएंगे, जिससे हमारा एक न्यू लाइफस्टाइल आएगा। It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and industrialized regions developed. Railways expanded and industrial revolution occurred. आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में मोर 10th में है, इधर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए बा, बिकॉज अब चेंजेस आए थे तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से क्या होगा, रेलवे नेटवर्क बढ़ गए, बिकॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे इज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। Industrialization brought men, women, and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Means, if I say 15 घंटे काम और सिर्फ 20 रुपीज या 30 रुपीज पर डे का, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, है ना। अभी जैसे इंडिया में हो रहा है ड्यू टू हो, वो इट्स पॉसिबल, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इट्स नेचुरल। कि अब देखिए ना, कोरोना के कारण सबके थोड़े बिजनेस बंद हो गए, तो लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है देने को, खुद जो कंपनी ओनर्स है उनके पास, तो फिर एम्प्लॉयज को रख के क्या करेंगे, है ना, लाइक दैट। और फिर अब वहाँ पे लोगों को रहने में भी प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज टाउन डेवलप भले ही हो रहे थे, बट इतने लेवल पे तो नहीं था, क्योंकि क्या होता है, सिर्फ गांव खेड़े के लोग भी अर्बन एरिया में आके रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज तो अर्बन एरिया में ही सेटअप होती है जनरली, तो गांव खेड़े के लोग भी अर्बन एरिया में आने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड्स अलग अलग चीज़ों की बढ़ती है, तो उससे थोड़ा सा लोगों को रहने में प्रॉब्लम जा रहा था। Liberals and radicals search for solutions to these issues. Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property holders या फिर owners and employers. Employers मतलब जो लोगों को काम देते वो, okay? Having made their wealth through trade and industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. मीन्स हमें अब बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, हमें ट्रेड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा लिबरल्स एंड रेडिकल्स का बोलना था। सबने मिलके अब इन चीज़ों में काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, जिससे चेंजेस आएगी धीरे धीरे करके। बट दो चीज़ें इसके लिए जरूरी है। फर्स्ट, कि हमें पास हेल्दी वर्कफोर्स मीन्स हेल्थी सिटीजन्स हो जो काम करने के लिए इजी तैयार है, एंड सेकेंड एजुकेटेड सिटीजन्स, है ना, बिकॉज जो अभी भी उस ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि वीमेन ने काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ हाउस होल्ड संभालना चाहिए, तो व्हेन द आइडियाज ऑफ द ट्रेडिशन विल चेंज, उसके बाद धीरे धीरे लोग नए नए चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, एंड they will talk about that there should be certain changes in the towns or means in the society, जिससे development होगा। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believe that in the value of individual efforts, labor enterprise। हमने देखा ना कि सबको, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ये देखा कि सबको अपने मेहनत के बल पे प्रमोशन मिलना चाहिए, या फिर
कुछ फ्रीडम मिलना चाहिए, नॉट फ्रॉम द बर्थ। जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी को मिलता था टैक्सेस फ्रॉम बर्थ, अगर आप उनकी फैमिली में बर्थ हो गए तो आपको टैक्सेस आपके बर्थ से मिलना चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू जब तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, यू डू समथिंग फॉर योर ओन नेशन और कंट्री, दैट टाइम यू शुड गेट सम राइट ऑफ फ्रीडम कि हाँ भाई तुमने इतना अच्छा काम किया नेशन के लिए तो हम तुम्हें इतने इतने टैक्सेस से माफ करते हैं, ऐसा तब आपको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe that societies would develop. जब ऐसा पुअर और रिच का भेदभाव हर कंट्री में रहेगा, that cannot be avoided or it cannot be removed easily. ओके, इट्स लिटिल इम्पॉसिबल टास्क कि हम सबको मिडिल क्लास बना दें या फिर कोई पुअर इन या कंट्री में, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट कुड बी मैनेज प्रॉपरली कि जब पुअर और रिच एक साथ आए। मीन्स हमने देखा ना कि पुअर हमने एक कंडीशन देखी उनकी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर बेसिस, तो वैसा ना हो, वर्किंग आवर्स भी थोड़े कम हो और वेजेस भी थोड़े उस आर को मिलते हुए, वर्किंग आवर्स को मिलते जुलते हुए, जिससे क्या होता है that there is like if I say in simple language to you, अगर जो सिटीजन्स जो एज अ लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उन पर अगर हाई वर्किंग प्रेशर रहेगा, उनको उसकी वर्किंग के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग काम करना चाहिए क्या? नहीं, मन में भले काम करने की इच्छा ना हो बट फैमिली रन करनी है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा उन्हें। बट ऐसे क्या होगा, उनके मन में ऐसा बोलते हैं ना विद्रोह, दे विल, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मालिक कितना खड़ूस है, हमें पैसा नहीं देता हमारे काम का, वो अपनी यूनियंस फॉर्म करेंगे। इन फैक्ट्री होती है ना लेबर यूनियन है ना, तो उससे क्या होगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी अप एंड डाउन हो सकता है बिकॉज लेबर वुड नॉट वर्क, दे वुड डू कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स की पैसे बढ़ाओ या फिर हमें अच्छी हमारे वर्किंग आवर कम करो, हमें अच्छी लिविंग के लिए जगह दो, है ना। सो फॉर दैट वी नीड टू गेट टुगेदर। किसी को अपने प्रॉपर्टी होने का ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैम वी शुड बी इक्वल कि हमारे पास भली प्रॉपर्टी है बट उसे प्रोडक्टिव कौन बनाता है? ये लेबर लोग। अगर उस पर ये लेबर लोग काम ही नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव बनेगी क्या? नहीं। और अगर प्रोडक्टिव नहीं बनेगी तो वो जो पैसा आ रहा वो आएगा क्या? नहीं। तो भली प्रॉपर्टी जो है वो किसी लैंड ओनर की होगी पर उसे प्रोडक्टिव कौन बनाता है? ये लेबर। तो जितना भी कैपिटल वो लोग अर्न करते हैं, कैपिटल इन द सेंस प्रॉफिट या पैसा, वो सिर्फ एक के हाथ में जाना चाहिए क्या? जो ओनर है, नो, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑल द लेबर्स, क्योंकि उनका भी उतना ही इक्वल राइट है उस पर बिकॉज दे मेड दैट प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। ओके, many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। बहुत आसान था। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution। Nationalist again एक क्लब है लोगों का जिन्हें चेंजेस चाहिए थे for the welfare of the society। To put an end to the kind of government established in Europe in 1850, mostly democracy mostly monarchy रहती थी, या फिर हम कहे तो monarchy or it could be dictatorship like this only। Okay, in France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionary and worked to overthrow existing monarch। आपने फ्रेंच का देख लिया, जर्मनी का नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, रशिया का ये चैप्टर में देख ही रहे, इटली का आपको सिर्फ थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दिए हुआ है। ओके, nationalist shocks to revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights। nationalist का क्या बोलना चाहिए था? सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, अब सबके इसमें ना एक तो लिख ही सकते हैं राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पे याद नहीं आता तो आप एक पॉइंट तो लिख सकते हैं दैट इन वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स। अभी इटली का सिर्फ 2 या 3 लाइन के बारे में आपको दिए हुआ है दैट आफ्टर 1850 गुज़ापी मैज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। मीन्स कॉन्स्पायर मतलब वो जो दूसरे दूसरे कंट्री के रिवॉल्यूशनरी थे उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ एक टीम फॉर्म करके कि आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी फ्यूचर में करेंगे, ऐसे करके उन्होंने रिवॉल्यूशन इटली में लाए। Nationalists elsewhere, including India, read his writings. Also, Giuseppe Mazzini, he was a writer, so he used to write all the
रिवॉल्यूशन और एनी आइडियोलॉजी ऑफ हिज जिसने इटली में बहुत अच्छा काम किया, तो इससे क्या होता है दूसरे देशों के भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ना कि हाँ भाई इन्होंने ट्राई किया अपन भी ट्राई कर सकते हैं, ये लाइक दैट। ओके, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप लास्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का। जल्दी से हम पढ़ते हैं, खत्म भी तो करना है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। Fun point is the coming of socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. By mid-19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention. कि अब सबको चेंजेस चाहिए था तो सब जन किसके के पास जा रहे थे, सोशलिज्म के ग्रुप के पास जा रहे थे कि हाँ भाई आप लोग चेंजेस ला रहे हो ना तो हम आपके सपोर्ट में हैं। Socialists were against the private property and saw it as the root of all the social ills of the time. मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, कुछ के पास बहुत कुछ और कुछ के पास कुछ भी नहीं, ऐसा बोले तो वो अगेंस्ट में थे टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। और उनका बोलना था ये प्रॉपर्टी ही पूरे इस झमेले की बोलेंगे हम जड़ है। Individuals owned the property that gave employment, but the propitiate were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property product। मैंने बोला ना सारा कैपिटल वो अकेला प्रॉपर्टी ओनर रख लेता था, जबकि उसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव किसने बनाया, उन लेबर्स ने। So if the society as a whole rather than a single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaigned for it. अब इनका क्या बोलना था कि जो प्रॉपर्टी है सब में इक्वली डिवाइड कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा सब क्या अपनी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी तो सब जन अपना अपना प्रोडक्शन करेंगे, अपना अपना बेचेंगे, अपना अपना कमाएंगे, जिससे उनके बीच में एक तो डिस्कोर्स नहीं होगा। एंड देन व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड सब जन एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ वैसे पार्टनरशिप करेंगे या फिर कॉन्ट्री करेंगे या फिर कंपनी स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा दोनों का डेवलपमेंट होगा एंड देन द सोसाइटी वुड डेवलप ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Okay, now how could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? अब अगर किसी के पास सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी रहेगी तो उनका कुछ क्वेश्चन है कि सोसाइटी काम कैसे करेगी। ओके, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी कि सबके पास इक्वलिटी हो, उसका एक बेसिक क्या है वो देखिए। Socialists had different visions of the future. Some believe in the ideas of cooperatives. अब कोऑपरेटिव एक क्या होता है बेसिकली आपको पे अमूल। ओके, इन इंडिया अमूल इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया और इन वर्ल्ड, आई डोंट नो शायद। फिर एक लिज्जत पापड़ होता है वो भी एक बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है। देन एक कृषि एक फार्मर्स का भी है, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम, आपको एक चैप्टर में कोऑपरेटिव्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, so there you will learn। but एक होता क्या cooperative where all people of a same category जो एक ही काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अमूल तो सब मिल्क में चलाते थे, अब तो वो एक कंपनी की तरह बन चुका है, कोऑपरेटिव कंपनी है वो। जब कुछ उसके मैनेजर्स वगैरह, पर पहले जब वो स्टार्ट हुई थी इट इज इन आनंद गुजरात। इट उसका जो फॉर्मेशन था वो शायद व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट हैपन इन दैट जितने भी मिल्कमैन थे ना वो अपना दूध एक जगह जगह जमा करते थे, उससे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्हें बनाने थे वो बना लेते थे एंड देन दे यूज्ड टू सेल इट इन द मार्केट, जिससे उनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन था, मीन्स अच्छी क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में गुड़ था टू मार्केट में सप्लाई करने के लिए। और फिर जितना भी वो लोग कमाते थे पैसा वो क्या करते थे उसको इक्वली अकॉर्डिंग टू वर्क दे डिड और अकॉर्डिंग टू द मिल्क दे सप्लाइड उनमें डिवाइड कर लेते थे। आज भी अमूल का ऐसे ही कुछ तरीका है बट उसमें तो ऐसे चेंजेस आ गए। ओके, so this is the idea of cooperative. So Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called a New Harmony in Indiana. उन्होंने अपनी खुद की cooperative society बनाई। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded the government encourage cooperative.
ठीक है, कि एक अकेला बन के कितने बड़ी कोऑपरेटिव बना पाएगा, तो सिर्फ 10 से 15 लोगों को जमा कर पाएगा खुद के जैसे। बट इफ अ गवर्नमेंट वुड फॉर्म अ कोऑपरेटिव, जिससे जितने भी नेशन में लोग हैं ऑफ दैट क्लास दे वुड गैदर, जैसे सारे मिल्कमैन जो है सब गैदर हो जाएंगे उस कोऑपरेटिव में, एंड इट कुड फॉर्म अ बिगर वी कैन से bigger cooperative society or something. Okay. In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to engage cooperative and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profit according to work done by members. So मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. Now here is about something about two more writers. They are not actually writers but more focused people, या फिर जिनका more उनका एम या फिर उनके थॉट्स बहुत अच्छे थे इस बारे में, दैट इज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. देखिए उन्होंने फिर खुद के आइडियाज शेयर किए टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट capital owned society where the capital invested in factories and the profit of the capitalists were produced by the worker. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जितना भी कैपिटल जमा होता था वो कौन रख लेता था, पूरा कैपिटलिस्ट. और कार्ल मार्क्स का ये बोलना था जब तक कि पूरा कैपिटल जो ओनर है वो खुद के पास रखेगा तब तक सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि वर्कर्स को ही अब खुद के वेलफेयर के लिए एक तो इनका ओवरथ्रो करना पड़ेगा, मतलब इन्हें निकाल के फेंकना पड़ेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, और कैपिटल को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करनी पड़ेगी. Okay, workers had, Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would trim in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. यानी एक तरीके से तुम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करो जिससे प्रॉपर्टी डिवीजन हो, एंड देन यू अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी यू वर्क कि सबको लैंड प्रोवाइड किया जाए, उसके अंदर सब जन अपना अपना काम करके पैसा कमाए. ओके, दिस वाज बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी हियर. एंड नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर मतलब कि आज नहीं होगा तो ये फ्यूचर में तो सोसाइटी बनने ही वाली है, ऐसा उनका बोलना था. नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. बहुत छोटा सा, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. कि आप सबके बीच में ना वो आइडिया स्प्रेड होने लग गए थे कि रिवॉल्यूशन चेंजेस आने चाहिए, वी नीड टू ब्रिंग समथिंग, मीन्स हमें कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा जिससे हमारा वेलफेयर हो. सब जन उससे थक गए थे कि भाई अब सहन नहीं होता, अब तो चेंज लाना पड़ेगा. इसलिए ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करना चाहिए, एक सोसाइटी फॉर्म की, एंड दैट वाज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल ने उसे नाम दिया. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in the times of distress and demanded a reduction of working hours and right to work. फिर वर्कर्स ने अपना लेबर यूनियन फॉर्म कर लिया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की, एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर यूनियन एक ही है. तो क्या जिससे वो लोग सब पैसा जमा करते थे. फिर जो मेंबर को एकदम ही तकलीफ में है, वो जिससे उसके अगर हेल्थ खराब हो गई तो उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए, या फिर फैमिली कोई प्रॉब्लम उसके लिए पैसे चाहिए, तो लोग उसे पैसा प्रोवाइड करते थे. देन दे आल्सो डिमांडेड इन रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, मीन्स 15 आवर्स तक कौन काम करेगा, हमें रिडक्शन दीजिए, हमें सिर्फ 10 आवर्स और 12 आवर्स जितना काम रखिए. देन राइट टू वोट हमें चाहिए, ऐसा उनकी डिमांड थी. In Germany, these associations work closely with the Social Democratic Party, SPD. जर्मनी में SPD नाम की पार्टी थी जो गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट होना चाहती थी, और वो लोग इनके साथ काम करते थे जिससे इन्हें वोट मिले और ये इनके वेलफेयर के लिए कुछ वहाँ पे चेंजेस लाए, and helped it win parliamentary seats. By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. ठीक है, अपनी अपनी लोग पार्टियां फॉर्म करने चालू कर दिए थे. However, till 1914, socialists never succeeded in forming government in Europe. पर कभी वो लोग खुद की गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं कर पाए, भले ही लेबर उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे, बट दे वर नेवर able to form their party because
थोड़ा सा इस से मार प्रैक्टिसेस भी होती होगी, या फिर वो लोग थोड़ा पैसा फ्रॉड होगा करके अपना अपने या किसी तरह भी क्लर्जी या हाई कास्ट पीपल ही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते थे. Represented by strong figures in parliamentary politics, these ideas did shape legislation, but the government continued to be run by conservatives, liberals, and radicals. भले nationalist और socialist जो थे ये, इनके ideas बहुत अच्छे थे. They were really good to form a better society. और उनके ideas पार्लियामेंट हाउस में बहुत पसंद भी किए जाते थे. पर जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा किसकी आती थी? ये रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स की. मोस्टली कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स लिबरल्स भी रेयर आते थे, मोस्टली कंजर्वेटिव्स ही रहते थे. भले इनके आइडियाज कितने भी अच्छे थे, पर जब गवर्नमेंट ही उनकी होगी तो इनके आइडियाज कौन सुनेगा? कोई फॉलो करने भी वाला है क्या? सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक 1. अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझा हो या फिर आप चाहते हो मैं एक बार वो पॉइंट और अच्छे से डिटेल में समझाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा. मैं डेफिनेटली उससे समझाऊंगा. यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स. हम नेक्स्ट वीडियो में ये सेकेंड पार्ट जो है रशियन रिवॉल्यूशन विच फ्रॉम वेयर द रियल स्टोरी बिगिंस, हम वो पार्ट कवर करेंगे. बहुत ही अच्छा पार्ट है एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप अगर मुझे फटाफट कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और आप ये करेंगे तो मैं बहुत जल्दी नए नए वीडियोस बनाते रहूँगा और आप सबको पढ़ाने में मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ गाइस. So thank you guys. Bye.